So today's is basic commands. Okay, you can see it my screen. Yes. Okay. So these are very important. Okay, these commands are very often used, daily use. Okay. So first we'll go to the ls. Well, I will start my power up. You started recording, right? Yeah, started. Yes. It started. So today's session is very important. You have to practice 2 times, 3 times, 4 times. If you not understand, okay. So these commands very useful. Daily they are using. If you familiar this command, you can serve it in Linux. Nazir, Yeah. after completing the section, will you please share the recording? No. Yeah, sure. Okay, thank you. So if you familiar this command, you can serve it in the Linux field. Okay. How many commands are there? So today we have 20 commands. Mm-hmm. So again tomorrow also we have some other part 2 that also 20 commands. If you familiar with 40 commands, that is more than enough to serve in the Linux. Okay. Mm-hmm. So ls command. So first of all, before command, you have to remember these things. So if you see dollar symbol, it will be the normal user. So in every platform, whether it is Linux or Windows, we have two kind of users. One is normal user, one is administrator user. Okay. If you see, if you see this dollar number, you have to assume that it is a normal user. Okay. If you see this hash symbol, it will be a root user. Root user. So in Windows, we call as administrator. Okay. Okay. Mm-hmm. Again, in the commands, we don't have any upper commands. In Linux, we do not have any uppercase. Okay. All commands will be lowercase. This thing you have to remember. Again, the syntax, every command syntax will start like it will come first command, then argument, or first command will come, then option, then argument. Again, first command will come, then source and destination. So this syntax you have to remember. Wherever you are working with the CLI, you should remember first will come command. Okay. Again, option will come. After that, argument. What is the argument? I will explain you. Okay. So these things you have to remember. Okay. So some command will not work with normal user. In that case, you have to switch to root user. Then you have to perform the commands. Okay. So in my case, I am going to log in normal user. So you can see that dollar symbol is normal user. Okay. So dollar symbol normal user cannot perform some critical commands. For example, I want to check /etc/password. Shadow. See here, shadow. Permission denied. So in that case, you have to switch to root, which is administrator.
then I can run that command. See, just remember, wherever you see the dollar symbol, that is normal user. It has limited privileges. Okay. So the root is full privileges. So in Linux, that is a best practice to always log in with the normal user. Okay. So in Linux, every task, every execution, every work we are going to do in the CLI. This is the CLI, okay, command line interface. CLI means command line interface. So this parameters you should know, okay, CLI. They will ask in the interview what is the CLI. Command line interface. Okay, jump to the basic commands. So the dollar symbol is normal user, the hash is root user, okay, the CLI is command line interface. Again, in Linux, we don't have any uppercase, okay, the syntax will be first command will come, then argument, first command will come, then option, then command will come, then source. Okay, first command is ls. So ls means to list the files. I already mentioned below. See, list means list the contents of a directory. List of files and directories in the current directory. For example, how to know current directory? We have the command pwd. Pwd means present working directory. So to learn the Linux, we need basic Windows. See, for example, if you go to Windows, this path is current directory where we are in C drive inside slash user nasi. This is the path. Okay, inside here we have. So that is what we call in the present working directory. Okay, in present working directory, if you give ls, nothing is there. For example, I'm going to other path like slash. See here, where I am inside the root directory. Okay, inside the root directory, just to give ls, it will show the list of files and directories. If you want to check list long format, if you can give ls-l. See here, D means directory. Directory means folder. So in Linux we call so this thing you have to remember in Linux we call folder as directory. Okay. So if you check here, this L means link file. It will be linked. There is a separate topic. Okay. Uh, Here non file is there. Okay. D means directory. D. So it will be the in blue color. Okay. Directory is nothing but folder. Okay. File can be if you go to the slash etc folder ls-l.
See, if you check hyphen, it will be file dash at last. L means link file, hyphen means file. You got it right? So you can easily remember. Okay. So yeah. I cannot understand. Will you please repeat again? Nothing. PWD is the command. I told you right. This syntax you have to remember. Okay. First command will come. Okay. So this is the ls command. Okay. What the ls command will do? Just you give ls. It will list the files and folders. Files मालूम नहीं क्या? Files का तो क्या मालूम नहीं क्या? कोई भी हो सकता है. Folder का तो मालूम नहीं क्या? मालूम. वैसा. तो हमें ls मारे तो हमको क्या क्या files and folders आती हैं वो आके हमको दिखाता. Okay. समझ नहीं? ये आके CLI करने की बात. CLI command line interface. देखो अब आके ये आके विंडोज से हमको मालूम हो ये डेस्कटॉप में क्या है, फाइल्स है, ये फाइल्स, ये डायरेक्टरीज है. ओके. GUI है से हमको हंगे दिखता है. ओके. CLI होने से हमको क्या तो कमांड मारे तो दिखता है हमको. ओके. तो कमांड जस्ट ls करने का कमांड. ओके. मारे तो हमको क्या क्या आता है, फाइल्स, ये पूरा फाइल्स. ओके. ये थोड़े पूरा ब्लू कलर में, थोड़े व्हाइट में है. हाँ वो फोल्डर्स. ओके. ले मैं क्या व्हाइट बताता हूँ. व्हाइट फोल्डर्स क्या? व्हाइट है सब फाइल्स. व्हाइट है सब फाइल्स, नहीं कलर है सब. इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, ls मारे तो ऐसा दिखाता. ओके. अगर ls हाइफन l दिस इज द ऑप्शन मारे तो लॉन्ग फॉर्मेट में दिखाता. यहाँ पूरे फाइल के नाम होती है, उसका अब्रिविएशन हाँ होता. फॉर एग्जाम्पल देखो अब यह है, ये क्या है, फाइल फोल्डर होता है, इसके सामने यहाँ होता हाइफन कर दो. हाइफन कर दो, फाइल कर दो. समझ आया नहीं? इसलिए मैं लिखता हूँ फंडामेंटल. ओके. हाइफन करके आया तो ये फाइल कर दो. समझ आया नहीं? डी कर को देखे तो ये आके डायरेक्टरी कर दो. इसलिए मैं क्या होता हूँ इन लिनक्स का क्या है, वी कॉल ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. In Linux, we call folder as directory. समझ नहीं? Directory. D का तो directory. का तो folder, nothing but folder. समझ आया? ls command है. हाँ समझ लो. Just to list of files and directory. कितने files हैं देखना है तो ये पूरा. ओके. ls कर मारे तो files folders पूरा दिखाता. ये जो blue color है वो पूरा के folders. Simple. अब तुम्हें C drive में गए तो क्या होती है? ये files folder ऐसा नहीं. ऐसा. प्रोग्राम फेज में गया. ये पूरा क्या है? पूरा फोल्डर. हाँ दिखाता नहीं फोल्डर करके. हाँ. सेम होता. ये आगे GUI होने से तुम्हें दिखता है, CLI होने से तुम्हें देखना का तो ls कर मारे तो दिखाता. So that is the first command. Both are you understand right? Okay. Okay. Next command क्या है? ls है. Touch command. To create a file. To create a empty file. देखो पूरा एप्लीकेशन मान लिखो हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके. To create a empty file. तो कंपल्सरी एंटर पूछते हैं हाउ टू क्रिएट एम्प्टी फाइल. वी कैन यूज टच कमांड. सो ऑलवेज आके ये सिंटैक्स तुम्हें याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट करेंगे. ओके. जो भी मैं करके हूँ ये समझ में आता. ओके. सिंटैक्स फर्स्ट कमांड आता. समझ आता नहीं? अब हमें फाइल क्रिएट करना तो कमांड क्या? टच. टच कमांड. ओके. सो गो टू हियर. फॉर एग्जाम्पल मैं कहाँ हूँ, /etc फोल्डर में हूँ. ओके. अच्छा मैं क्या करता हूँ तो CD एंटर मार तो होम डायरेक्टरी चल जाता. मैं कहाँ हूँ तो /home/test यूजर में हूँ. ओके. होम का तो डेस्कटॉप क्या? हाँ डेस्कटॉप में होम डायरेक्टरी. एवरी यूजर हैव होम डायरेक्टरी. अच्छा. डेस्कटॉप अलग होता. डेस्कटॉप आके इसे डेस्कटॉप में रहता क्योंकि CLI नहीं. अगर GUI है तो डेस्कटॉप होता. अच्छा. ऐसा. वो जैसे विंडोज में माय कंप्यूटर डॉक्यूमेंट्स में गए तो हमारा एक यूजर प्रोफाइल रहता. देखो लॉगिन करे सो नेम सी
वो वैसा क्या होम डायरेक्टरी का तो वैसा समझ लेना, हाँ, अज्यूम हाँ, कर ये लेना। हाँ ये होम डायरेक्टरी हाँ हाँ ऐसा देखो, ये पूरा कमांड लाइन सुना था नहीं, ये विंडोज हाँ ऐसा। तो ये आके ओनली कमांड लाइन, देयर इज नो डेस्कटॉप हियर। जीयूआई है तो डेस्कटॉप आता, समझ आता नहीं, जीयूआई है तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में कहते हैं, उसमें डेस्कटॉप होता। ये जस्ट कमांड लाइन में डेस्कटॉप नहीं होता। ओके, जस्ट होम डायरेक्टरी, एवरी यूजर हैव द होम डायरेक्टरी। होम डायरेक्टरी का तो होम फोल्डर होता, एवरी होम के अंदर जितने यूजर क्रिएट करते हैं उसके अंदर वो रहता। ओके, अब मैं क्या करता हूँ तो एक आप एलएस कर मारे हो तो एंटर मारे हो, और एक हमें तुम्हें याद करना क्या तो सक्सेसफुल कमांड, कमांड सक्सेस हुआ नहीं हुआ मालूम होना का तो एवरी सक्सेसफुल command will not give any output. So the command has been successful, whatever you have been create, the file has been created, ऐसा output नहीं आता। every successful command will not give any output. Okay, but every unsuccessful command will give error output। समझ आता है नहीं, जो भी हमें कमांड मारती है सक्सेस हो गया तो गच्चू है आता। ओके, तो हमें एज्यूम कर लेना कि ओके वो सक्सेस हो गया, इट हैज बीन अचीव्ड। ओके, अगर अनसक्सेस हुआ नहीं हुआ, जो हमें फाइल क्रिएट करने के वो फाइल क्रिएट नहीं हुआ तो वो आके एरर दिखाता, कहीं को नहीं क्रिएट हुआ, रीजन क्या, कमांड गलत है क्या, ये पूरा दिखाता। ओके, ओके देखेंगे। ओके, अब मैं क्या करें, एलएस मारे हो क्या भी दिखाया नहीं, तो हमको क्या भी नहीं है, फाइल्स नहीं है, डायरेक्टरीज नहीं है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, एक फाइल क्रिएट करता हूँ। फाइल क्रिएट करना का तो टच कमांड, तो एवरी पूरा क्या है तो लोअर केस। ओके, टच एक फाइल का नाम आके है, मैं क्या करता हूँ टेस्ट फाइल, फर्स्ट कमांड देन डेस्टिनेशन, क्या फाइल का नाम क्या, टेस्ट फाइल, एंटर मारो। तो एंटर मारो तो क्या होता, देयर इज नो आउटपुट, इट विल बी साइलेंटली क्रिएटेड। हाँ स्लो हो गया मतलब। ये थोड़ा स्टार्टिंग में समझ में को आने के लिए ये हमें कमांड टच फाइल नेम दिए है ना, टेस्ट फाइल बोल को कोसा भी दे सकते हमें कोसा भी दे सकते हैं। जस्ट हमें क्या क्या बनेगी कर को बोल को, क्या क्या क्रिएट करेंगे कर को बोल को, हमें डायरेक्टरीज में जीयूआई के जैसा कन्वर्ट कर को देख सकते हैं ये लाइनक्स को। हाँ देख लिया, तुम्हारा जीवाई डाले हैं क्या, देख लिया। हाँ ये जस्ट कमांड इंटरफेस होने से तुम्हारा हाँ वो डेस्कटॉप वो जियो नहीं होता, लेकिन तुम्हारा तुम्हें जो इंस्टॉल करें वो जियो है, उसमें तुम्हें देख सकते, जो भी है फाइल क्रिएट करी उसमें तुम्हें देख सकते। स्टक हो गया। ये स्क्रीन लॉक हो गया मेरा VMware का, उसे ओपन करना कैसा? हाँ, अच्छा मैं शेयर करता हूँ, आ गया। हाँ करो करो। स्क्रीन दिखता है क्या? आओ अच्छा बड़ा है नहीं? आओ। तो ये आके एक EC2 यूजर हूँ। ओके, मैं किस में हूँ तो स्लैश होम में हूँ, EC2 यूजर में एलएस मारे क्या ही नहीं। ओके, एलएस इज टू लिस्ट द फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। ओके, तो नेक्स्ट कमांड इज टच कमांड, टच मार के कमांड मारना, फिर आर्गुमेंट मारना। आर्गुमेंट का तो touch means we are going to create one empty file, so which file, that argument you have to give, the file name you have to give. Okay, touch then file name is Irfan, कोच है उसका इरफान। तो सक्सेसफुल कमांड विल नॉट गिव एनी आउटपुट, क्या भी आउटपुट दिया, इरफान हैज बीन क्रिएटेड, कुछ भी नहीं दिया, सक्सेस में दिया, लेकिन आउटपुट में आके इरफान क्रिएट होगा, क्रिएट हुआ नहीं इरफान।
अब लॉन्ग फॉर्मेट में देखना तो ls हाइफन एल, देखो हाइफन आया तो मैं बोला नहीं फाइल करके ऐसा, तो ये आगे एम्प्टी फाइल है। एम्प्टी फाइल है तो क्या कैसे मालूम होता है, उसके अंदर कोई भी कंटेंट नहीं होता। देखो हाइफन करके आया तो फाइल, ओके एग्जाम्पल है। अच्छा नेक्स्ट कमांड क्या है, तो टच करता हूँ टू क्रिएट ए फाइल। ओके मैं एक 2-3 फाइल क्रिएट करता हूँ। मैं ये शाहुल करो और एक फाइल क्रिएट करता हूँ। हमें एलएस मारा तो हमारे एक ही फाइल है इरफान, और एक फाइल क्रिएट करता हूँ शाहुल। ओके टच कमांड, टच फर्स्ट कमांड आता है, उसके बाद आके आर्गुमेंट आता है। आर्गुमेंट का तो फाइल नेम, ओके टच फाइल नेम, एंटर मारा तो कुछ भी दिखाया नहीं। एलएस कर मारा तो शाहुल का 2 फाइल आएगा, हम 2 फाइल हमें क्रिएट करें। ओके ये 2 फाइल में 0 बाइट्स का तो एम्प्टी फाइल, हाँ 0 दिखता है नहीं, सो एम्प्टी फाइल यू कैन क्रिएट। ओके अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, तो टच को है क्या, मैं अपर केस यूज करता हूँ एक कमांड को, टी करेंगे अपर है TYCH, टच मैं ना से क्रिएट करता हूँ। देखो एरर कमांड नॉट फाउंड, एरर दिखाता। सक्सेस नहीं हुआ तो क्या करता है, कमांड दिखा, ये कई सक्सेस नहीं हुआ, क्या रीजन, क्या करता कमांड नॉट फाउंड, जो कमांड मारा वो आके वो कमांड नहीं है, नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द सिस्टम बिकॉज one character is uppercase. So in Linux, every command will be only lowercase. देखिए टच मार के अब मैं नासिर मारता हूँ, टच हो गया तो क्रिएट हो गया ls हाइफन एल। समझ आया नहीं, टच कमांड इट विल क्रिएट empty file. Okay, we'll move to the next. कैट कमांड क्या करता था, जो भी फाइल है उसके अंदर कंटेंट क्या है देखना। अब हमें इसमें है क्या, डबल क्लिक करके ओपन करके देखते हैं कमांड लाइन में कैसा हमें फाइल कंटेंट देना। फॉर एग्जांपल आके अब मैं डेस्कटॉप में हूँ, ये पूरा फाइल मैं इसे ओपन करो देखना का तो टेक्स्ट फाइल, डबल क्लिक मारना ना तो राइट क्लिक मारना, ओपन कर मारना, हमको कंटेंट दिखता। ओके तो कमांड लाइन में कैसा कहता, कैट कमांड फर्स्ट कमांड आता। ओके फर्स्ट कमांड देन आर्गुमेंट। द कैट कमांड क्या करता था, टू ओपन ए फाइल, टू सी ए कंटेंट ए फाइल, ओके टू चेक द कंटेंट ए फाइल। सो कैट मारियो इरफान करने फाइल में क्या है कंटेंट देखना, मैं राइट क्लिक कर मारा तो कुछ भी नहीं है ऐसा। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ तो cd/etc एक फोल्डर में गया मैं, इसमें आके ls हाइफन एल मारा तो इसमें बहुत सारे फाइल्स है, फोल्डर्स है। ओके मैं फाइल्स देखना, ये फाइल्स में क्या है देखना, कैट को फाइल का नाम सेलेक्ट करके राइट क्लिक मारा तो फाइल परमिशन डिनाइड। ओके इसे देखेंगे कैट फाइल, देखो कंटेंट समझ आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कंटेंट को एक फाइल के अंदर हमें देखना का तो कैट कमांड यूज करते हैं। ओके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा क्या है, सो कैट आके बार बार एक 10 बार तो भी प्रैक्टिस करना। कैट इज यूज्ड फॉर द सी द कंटेंट इनसाइड फोल्डर, क्या है कंटेंट देखना तो टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द फाइल। तो मैं क्या करता हूँ, ls मारता हूँ, इसमें फाइल्स को सा ये फाइल है, ये फाइल को मैं देखना, कैट कमांड इज कैट देन फाइल नेम, ये फाइल ये जरा कंटेंट है इसमें टच। अच्छा ये फाइल के अंदर क्या है, कैट फाइल नेम फर्स्ट कमांड। ओके ये फाइल के अंदर इतने कंटेंट है, ओके कुछ भी हो ऐसा। तो ये ज्यादा ये इसको दिमाग में रखना। ओके सिंटैक्स फर्स्ट कमांड आता, जो भी कमांड उसका मतलब क्या, कमांड का मतलब तुम मालूम होगा ना, फर्स्ट कमांड आता। ls कमांड क्या करता, लिस्ट एंड फाइल्स, तुम्हारा मकसद क्या है कमांड माने, वो कमांड क्या करता करेगा तो मालूम होना, ये फर्स्ट कमांड आता। ओके उसके बाद आर्गुमेंट। अब ls कमांड क्या करता, जस्ट अगेन फाइल लिस्ट करता, जस्ट हम ls मारे तो क्या करता, लिस्ट करता। ओके अच्छा आर्गुमेंट देना हमें, ls हमें लॉन्ग फॉर्मेट में देखना, ls अपन यल तो ऐसा लॉन्ग फॉर्मेट में दिखाता, ये कब क्रिएट हुआ कब डेट क्या ये पूरा दिखाता। ओके ये तुम्हें इससे पहले ls करके बोल को पर्टिकुलर फाइल के अंदर क्या है देखने के वास्ते तुम्हें कर्सर से कॉपी करे क्या वो? हाँ एक काम करो, ls स्पेस हाइफन यल मारो। हाँ हो कॉपी करा मैं, कॉपी करना का तो फॉर एग्जांपल आके ये फाइल नहीं का तो कैट मारना, फाइल का नाम टाइप करना। अब ये sudoers फाइल है, sudoers करो टाइप करना, परमिशन देने का है। ओके कैट अब ये फाइल मैं देखता हूँ virc, ये है नहीं है virc, virc को टाइप करना,
नहीं मैं कॉपी करना का तो इसमें लाइनस पे कैसा का तो कैट जस्ट सेलेक्ट करको राइट क्लिक मारना कॉपी का तो कंट्रोल V कंट्रोल C ये पूरा नहीं चलता। ओके जस्ट सेलेक्ट करो फॉर एग्जांपल आके मैं दूसरा फाइल दिखाता हूँ। अच्छा ये अच्छा एक ये RPC करने का है क्या जस्ट उसे सेलेक्ट करे तो क्या होता है कॉपी हो जाता हो। ओके ओके अब मैं क्या करता हूँ कैट मारूं कैट जस्ट राइट क्लिक मारना पेस्ट हो जाता। हाँ सेलेक्ट अच्छा करे अच्छा तो कॉपी होता राइट क्लिक मारे तो पेस्ट होता। ओके एंटर मारे तो उसका अच्छा डिस्प्ले दिखाता। हम्म, Okay, so ls to list the files, touch to create empty file, cat to display the files content. So अच्छा मैन कमेंट हाँ क्या करता है तो एक ऑप्शंस कितने ऑप्शन है फॉर एग्जांपल आके ls करने का एक कमेंट जस्ट ls मारे तो एक कमेंट समझ आया हाँ वैसा ls हाइफन एल करके नहीं वो एक आर्गुमेंट एक ऑप्शन का तो क्या दिखाता एक फाइल में क्या क्या आर्गुमेंट है फॉर एग्जांपल आके अच्छे से समझना का तो आप देखो इसमें क्या है जस्ट ls मारे तो फाइल नेम दिखाता। इसे मैं एक लॉन्ग फॉर्मेट में देखना। ओके एक कब क्रिएट हुआ इसके अंदर कितना बेट है सब देखना तो ls हाइफन एल करके तो एक लॉन्ग फॉर्मेट। ओके ये पूरा ऑप्शन आए इसे ऐसे डिफरेंस है नहीं हम्म, ये पूरा है। ओके उसी तरह ls हाइफन ls करके जस्ट कमेंट। ओके ls उसके बाद आर्गुमेंट आती ls हाइफन ये कर हमारे तो क्या है हमको हिडन फाइल्स करनी से जो डॉट है ना ये छपकर होती है हम्म, हमको दिखते नहीं जस्ट ls मारे तो हमको दिखते नहीं ls हाइफन एल मारे तो दिखते नहीं लेकिन ls हाइफन एल ये कर मारे तो हिडन फाइल दिखते ये पूरा हिडन फाइल्स डैश लॉगआउट डैश प्रोफाइल ये पूरा हिडन फाइल्स करने से हिडन फाइल देखना का तो इंटरव्यू पूछता हाउ यू चेक हिडन फाइल्स का तो ls हाइफन एल ये ऑप्शन तो जो ये ls के बाद जो ऑप्शन आती है एल ओके एल आर है ये ऑप्शन है एल और टी को है। ओके ये जो भी ऑप्शन हमें यूज करते हैं ये कहाँ से देखती है हमें ये कमांड का तो मैन कमांड फर्स्ट मैन कमांड। ओके उसके बाद एक एक कमांड का आर्गुमेंट देखना ls करने का कमांड है। ओके उसके अंदर ऐसे हाइफन ये हाइफन एल ऐसे कितने ऑप्शन है देखना है तो मैन मार के ls मारो तो हमको ये पूरा दिखाता तो ऐसे कोई प्रैक्टिस कर सकते समझ नहीं ls के बाद ऑप्शंस क्या क्या है ये कमांड फर्स्ट आके कमांड मैं बोला है नहीं ये दिमाग में रख लेना बार बार बोलता हूँ मैं ये कमांड आर्गुमेंट कमांड ऑप्शंस ओके कमांड रिसोर्स एंड डेस्टिनेशन ये आके ज़्यादा दिमाग में रखना। ओके तो मैन कमांड क्या करता है तो एक दूसरे कमांड के अंदर क्या क्या ऑप्शंस है कमांड के बाद ऑप्शन आते हैं नहीं जैसा मैं दिखाया वो ls हाइफन एल हाइफन ये ऐसा पूरा टी आर सब ओके टाइम स्टैम्प से पूरा दिखाता तो हाइफन ये का तो डू नॉट इग्नोर ओके हाइफन ये तो ऑलमोस्ट ऑल ऐसा तो प्रैक्टिस कर सकते बल्ला का ऑप्शन है जैसे जैसे प्रैक्टिस करे उतना तुम्हारे नॉलेज आता बाहर का आना तो क्यों माना क्विट। अच्छा क्या टच करने का कमांड है उसमें क्या क्या ऑप्शन है मैन टच कितने ऑप्शन है हाइफन ये है चेंज ओनली एक्सेस टाइम सी है टू क्रिएट एनी फाइल ओके डे है एफ है इग्नोर है सब है तो एक एक बार एक यूज कर लेते गए फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ टच टेस्ट फाइल का यूज करें ls है फाइल एक एम्प्टी फाइल क्रिएट हुआ। अब मैं क्या करता हूँ टच हमारे ऑप्शन में क्या क्या है उनके हाइफन डाल के दूसरा फाइल क्रिएट टेस्ट 1 1 2 3 टेस्ट 1 2 3 टेस्ट 1 में क्या डिफरेंस है क्या डिफरेंस है ओके ऐसे ऑप्शन जो भी ऑप्शन है फॉर एग्जांपल क्या क्या ऑप्शन है करके एक टाइम देख लेंगे डुप्लीकेट में जाता हूँ मैन कमांड टच तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करे वैसा तुम आके हमारे पता ओके हाइफन ये चेंज ओनली द एक्सेस टाइम
touch-a test 321. Something will be changed, okay, or timestamp was okay, sound आएगा. तो उसके अंदर कंटेंट है तो पूरा पढ़े तो समझ में आता. ओके, सो वी गो टू द नेक्स्ट कमांड. सो टाइम बहुत कम है. सो मैन कमांड to know the options with the specific command. मतलब डॉक्यूमेंट भी बोल सकते, डॉक्यूमेंटेशन देखना का तो मैन कमांड. नीचे अच्छा लीड सी है तो डिस्प्ले द मैनुअल पेजेस भी बोल सकते हैं. मैनुअल पेजेस देखो मैन इज डिस्प्ले मैनुअल पेजेस फॉर एलएस कमांड. ये अच्छा हाँ नीड सी है. ओके, अच्छा एक फोल्डर क्रिएट करना. मैं एक अब तक हम क्या देखे, एक फाइल क्रिएट करना देखे, वो फाइल के अंदर कैसा हमें कंटेंट है नहीं देखा देखे. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट फोल्डर. इसमें ऑलरेडी हम डिस्प्ले करके हूँ, फिर क्लिक किया तो टाइम वेस्ट हुआ था. सो क्रिएट ए न्यू डायरेक्टरी. सो ऑलवेज मैं क्या बोलता हूँ, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नॉट फोल्डर ओनली डायरेक्टरी. सो इन लाइनक्स वी कॉल फोल्डर एज ए डायरेक्टरी. सो डायरेक्टरी का तो फोल्डर. ओके, हमको मालूम है क्या फोल्डर का तो. So the best practice is we have to do it directly. Okay, so एक डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करना, ls-l. There is no directory here. Okay, एक फोल्डर कैसे क्रिएट करना with the help of mkdir. The command is mkdir. What is the argument? Which directory? mkdir will do the making create a new directory. What is the directory name you are going to create? मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टरी का नाम आके न्यू डायरेक्टरी, तो न्यू फोल्डर. ओके, होगा क्रिएट होगा. ls हमारे पास blue color, ls-l. See here, this is directory. 7 directory. So how to create empty directory? The command is mkdir old directory. दो डायरेक्टरी क्रिएट करी मैं, एक न्यू डायरेक्टरी एक ओल्ड डायरेक्टरी. सी हियर, एक न्यू डायरेक्टरी एक ओल्ड डायरेक्टरी. डायरेक्टरी मीन्स फोल्डर, दो फोल्डर क्रिएट करी मैं. अच्छा, और एक फोल्डर क्रिएट कर दो, mkdir my directory. Give ls-l to list the files and directories. ls-l. Okay, so 3 डायरेक्टरी क्रिएट कर मैं with the help of mkdir. इसमें क्या था ऑप्शन देखना, आई वांट टू चेक ऑप्शंस. मैन mkdir ये ऑप्शन है. वर्क प्रोजेक्ट ये पूरा के एक बार पूरा चैप्टर हो गया तो ये पूरा अंडरस्टैंड होता है कैसा यूज करना करने का. ओके, okay, let's move to the other chapter, other command. So these are very very important commands. Okay, it will use daily, it will use. Okay, the cat greater than. So cat greater than also will create one file. See here, redirect to output a file. So basically, for example, okay, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, नाउ आई एम गोइंग टू टेक दिस इरफान फाइल. ओके, इन इरफान फाइल टू चेक द कंटेंट cat irfan. Okay, so nothing is there inside, there is nothing there. I want to add the content, I want to put the some content into the irfan. It is already 0 empty file. So कैसे ऐड करते हैं, how we can add the cat double greater than. Okay, if you give cat double greater than then file name irfan, then it will show, it will prompt you add whatever you want to add. Okay, this is something, this is test file created, कुछ भी हो गया, you can add it. Okay, with the help of touch command. Now I am adding some content, जो भी हो गया कंटेंट. अच्छा क्या करूँ मैं, एक इरफान करने की फाइल में मैं आके, पहले एम्प्टी था, मैं आके थोड़ा कंटेंट ऐड करूँ, वो 2 लाइन ऐड करूँ, उसके बाद कंट्रोल डी प्रेस करो सेव होने के लिए. ओके, कंट्रोल एल मारे तो ये होता. अब ls-l सेव को कौन सा कमांड मारे, कंट्रोल डी.
control plus D. After add the content to the file, press control plus D to save it. Okay, यहाँ लिखता हूँ. अब देखो इरफान करेगा, ये है कि एम्प्टी फाइल है, कुछ डेटा है इसके अंदर. ओके, कुछ कंटेंट है. देखना का तो कैट फाइल नेम, कुछ डेटा है नहीं कुछ डेटा. तो ये सेम डेटा मैं आके एक फाइल क्रिएट करके वो फाइल में मैं रीडायरेक्ट करना. मतलब कॉपी पेस्ट करना हो दूसरे डायरेक्टरी को, दूसरे फोल्डर को. हाँ, कैसा मैं कॉपी पेस्ट करना, कैसा मैं एक रीडायरेक्ट करना. तो हमें क्या कर सकते हैं, तो क्या इरफान के फाइल को न्यू डायरेक्टरी में डालना, ऐसा बोलते हैं तुम. नहीं, कैट मार के इरफान मारे तो क्या है, इरफान के फाइल के अंदर जो भी कंटेंट है हमको डिस्प्ले हुआ. ओके, तो ये जो कंटेंट, ये जो 2 लाइंस है, ये आके मैं दूसरे फाइल में डालना, रीडायरेक्ट करना, नहीं तो कॉपी करना. समझ लो. ओके, समझ लो ये आके बहुत बड़े क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा फाइल है, इसके अंदर बहुत कंटेंट है. मैं एक डुप्लीकेट बनाना, एक फाइल का नाम दूसरा देके एक डुप्लीकेट फाइल बनाना. समझ लो, डुप्लीकेट समझ लो. कैसा बनाना, तो कैट फाइल नेम हमें ग्रेटर देन यूज करके एक फाइल का नाम देंगे. फाइल का नाम आके ओके डुप्लीकेट. तो क्या होता का, तो जो डुप्लीकेट करने का एक फाइल क्रिएट हुआ था, वो फाइल के अंदर एक कंटेंट आया था. डुप्लीकेट होता नहीं क्या, डुप्लीकेट करते क्या, फाइल का नाम आता, उसके बाद उसके जो भी कंटेंट है वो पूरा आया था. अब मैं क्या करता हूँ, क्या डुप्लीकेट एक फाइल का नाम देखता हूँ. देखो आ गया नहीं, कैट इरफान मारे तो भी वही कंटेंट होता, कैट डुप्लीकेट एक फाइल का नाम दिया था वही आया था. तो ये रीडायरेक्ट करता, जो जितने भी फाइल व्हाटएवर वी हैव कंटेंट इनसाइड इरफान फाइल, इट विल गो टू द दिस फाइल. होता फास्ट, जितने भी 100 लाइन्स है, आई वांट टू मेक ए डुप्लीकेट फाइल. ओके, आई वांट टू रीडायरेक्ट टू दैट अदर फाइल. तो हमें इजी ऐसे कर सकते हैं. समझ आएंगे. ओके, कैट क्रिएटेड दैट. क्या शाहुल भाई समझ आया? फॉर एग्जांपल आके मैं क्या करता हूँ, ls हाइफन. ओके, मैं एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, इसमें सब भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल आते हैं. अब फॉर एग्जांपल आके कैट rpc करने का एक फाइल है, इसके अंदर इतने कंटेंट है. ओके, मैं क्या करता हूँ, कैट rpc के जितने भी उसके अंदर कंटेंट है, मैं आके एक डुप्लीकेट क्रिएट कर लेता हूँ. डुप्लीकेट नहीं, कौन सा एक फाइल. ओके, मैं rpc देता हूँ, rpc डॉट मैं तो बैकअप कर लिया. तो कमांड क्या करता है, ओके परमिशन डिनाइड का, तो परमिशन डिनाइड का, तो मैं बोला नहीं, नॉर्मल यूजर कैन नॉट डू इट, दे इट डजंट हैव एनी मोर प्रिविलेजेस. ओके, क्यों बोले तो ये जो /etc है पूरा के कॉन्फ़िगरेशन फाइल से होते हैं. क्या मैं क्या करता हूँ, कैट virc एक फाइल है, इसके अंदर इतने कंटेंट है. ये कंटेंट को मैं क्या करता हूँ, virc डॉट एक बैकअप फाइल, ये परमिशन डिनाइड. ओके, तो कॉन्सेप्ट समझ आया नहीं. अच्छा, शाहुल करने का एम्प्टी है. ओके, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, क्या डुप्लीकेट फाइल में से मैं शाहुल. अब क्या हो, शाहुल में डेटा आ गया नहीं, तो क्या शाहुल फाइल नेम मारे तो see here we have some data. Shahul file name correct signal. Nice. So it will redirect, it will copy, okay, and enter contents. So it redirect to output file overwriting the existing file.
So next आपका command is echo command, echo. नेक्स्ट कमांड आके इको क्या करता है, तो जो भी हमें इसके अंदर हमें टाइप करते हैं वो आके डिस्प्ले करता है. फॉर एग्जांपल आके इको हाउ आर यू, ओके, डिस्प्ले करता है. इसका स्पेशलिटी क्या है, तो फॉर एग्जांपल आके ये जो हाउ आर यू कंटेंट है क्या, मैं आके दूसरे इसमें डालना, इसमें ऐड करना. फॉर एग्जांपल आके कैट इरफान, इसमें ये है, ये 2 लाइन है, मैं एक्स्ट्रा पहले आके ऐड करना, एक लाइन ऐड करना. मैं एक ओके अस्सलाम वालेकुम हाउ आर यू करके ऐड करना का, तो जस्ट कमांड इको इन डबल कोट्स अस्सलाम वालेकुम हाउ आर यू मार के डबल ग्रेट अंत देके फाइल का नाम मानना इरफान. तो क्या करता, जस्ट हमें इको मार को इको डबल कोट्स में कंटेंट मार तो हमको डिस्प्ले होता. डिस्प्ले होता नहीं, ये जो लाइन आके मैं आके दूसरे फाइल में ऐड करना का, तो एग्जिस्टिंग जो नासिर 2 भाई लाइन रिकॉर्ड ना होता है क्या होता है. हाँ ओके. तो मैं इरफान करके फोल्डर में ये लाइन आके ऐड होना का, तो इरफान एक फाइल. अब तुम्हें इसे क्लियर करना तो CLER कमांड, ओके, LS-L. अब मैं कैट इरफान एक फाइल देखता हूँ क्या है इसमें, ऐड हुआ नहीं, 3rd लाइन समझ आया. इको कमांड से फॉर एग्जांपल कैट इरफान फाइल, इसमें आके 3 लाइन है, ओके. मैं 4वां लाइन आके ऐड करना, ओके, ऐड करना विद द हेल्प ऑफ इको का, तो फाइल के अंदर गए नहीं चलेगा, मैं ऐड करना ऊपर चीज जस्ट इको मार के हमें यहाँ पे आके आई एम फाइन कर मारे तो क्या होता, खाली हम डिस्प्ले करता, डिस्प्ले होता. ओके. ये जो डिस्प्ले हुआ सो लाइन आके ये एक फाइल में को ऐड होना, ओके, ऐड होना का, तो इको आई एम फाइन थैंक यू, ये लाइन आके एक डबल ग्रेटर देन देके एग्जिस्टिंग फाइल जो आके इरफान है इसमें ऐड होना, तो ऐसा मान, ओके. तो अब क्या होता है उसमें ऐड होगा, देखो सक्सेसफुल करना विल नॉट गिव एनी आउटपुट, ओके, सक्सेस हो गया. अब देखना कैट मैं स्पेस इरफान, कैट इरफान कैट स्पेस इरफान क्या हुआ. how compulsory Okay. every command after command it will be space, okay, space compulsory देना. देखो ऐड हुआ नहीं है, आई एम फाइन थैंक यू. कैसे ऐड करिए हमें ये दो, विद द हेल्प ऑफ इको कमांड. इको हाँ समझ आया नहीं इको कमांड शाहुल भाई. हाँ समझ में आया. अच्छा प्रैक्टिस करना, ओके. सो इको कमांड प्रिंट द हेलो वर्ल्ड टू द टर्मिनल, टर्मिनल में डिस्प्ले करता. अगर वो जो डिस्प्ले सोर्स हमें कंटेंट में ऐड करना है तो डबल गर्दन यूज करके हमें आगे वैसा ये करना, ओके. एक कमांड info command, info is similar to man command, okay. For example man cat command मारी हमें, ओके, उसका डॉक्यूमेंटेशन उसके ऑप्शन पूरा दिखाता, ओके. उसी तरह इन्फो भी सेम, इन्फो मार के कैट मारेगा ना, एक डॉक्यूमेंटेशन पूरा दिखाता. कमांड नाम हाइफन कैट आता क्या. नहीं, इन्फो का एक कमांड है हमें आगे है, देखो इन्फो ls नहीं कमांड एलएस का के बारे में दिखाता नहीं. हाँ इन्फो ls. यहाँ पे क्या है, तो इन्फो हमें आके ऐसा है, तो मैं बोलता हूँ कौन सा कमांड नॉट फाउंड करके आया करना, उसे एक कमांड को हमें आके इंस्टॉल कर सकते हैं. जस्ट रिमेंबर इन्फो इज द कमांड टू शो द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द कमांड, सेम सिमिलर टू मैन कमांड, ओके. मैन कमांड क्या करता है हमें ऑलरेडी देखे हैं नहीं. मैन कमांड क्या करता, मैन ls मार करता, ls के जितने भी आर्गुमेंट है जितने भी ऑप्शन है इट विल शो. सिमिलरली इन्फो कमांड क्या करता है, तो इट विल शो एंटर डॉक्यूमेंटेशन अलॉन्ग विद द ऑप्शंस. तो सिमिलर इन्फो करने का एक वो कमांड कौन लिखे है उसका ऑथर कौन हो, ओके, एक डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करता. इट प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट ls ऐसा, ओके. PWD हो तो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, तुम्हें कहाँ ही करने का दिखाता. फॉर एग्जांपल मैं कहाँ वर्क करता हूँ, ओके, मैं आके /home के यूजर के अंदर वर्क करता हूँ,
इसमें क्या क्या है ऐसे फाइल्स एंड फोल्डर्स है। फॉर एग्जांपल मैं के cd/ct से गई हूँ, मैं कहाँ हूँ तो pwd मानना, हाँ काम करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, इसमें क्या है ये फाइल डायरेक्टरी से। ओके, pwd मीन्स प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, वेयर आई एम वर्किंग। राहुल भाई 10 कमांड हम बस लिया आज को। ये बस लो, हाँ कहीं का तो कंफ्यूज हो जाती है, समझ देखेंगे। ये प्रैक्टिस करो, मेन आके ये ध्यान में रख ले करो, जो भी कमांड ना करती है तुम्हें ध्यान में रख लेना। ओके, आज पूरा प्रैक्टिस करते हैं, इन केस क्या तो डाउट है कॉल करते हैं नाजिम में। नहीं आप करो ना करो, सामान करते हैं। ओके, सो स्टॉप करना आज। So today what we have learned, just recaps. ls means to list the files and directories. Touch means to create the file. Okay, cat means to display the files and contents. Man means to know the one command information like argument. mk directory command is to create a new directory, empty directory. Okay, cat greater than means it will redirect to the other file. Okay, cat double greater than means to add the content. Already content है 2-3 lines, I want to add 4-5 lines. क्या डबल ग्रेटर देन, फॉर एग्जाम्पल लगे ये दिखाता हूँ। अब देखो मैं क्या करता हूँ, LSFNL। अब इरफान करके फाइल में कैट इरफान आई एम फाइन तक है। ओके, 1 2 3 4 फाइल है। ओके, आई वांट टू कैट डबल ग्रेटेड दैन फाइल नेम, आई वांट टू ऐड मोर लाइन्स, कंटेंट में ऐड करना। ओके, अब क्या ऐड करना, फॉर एग्जाम्पल